ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிகவும் பணிவோடு நம்மளுக்குள் உள்ள அகங்காரம், மமகாரம் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருவடியில் சமர்ப்பித்து நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோடு குழந்தை நிலையில் தெய்வீக அன்னையோட அன்பை பெற தியானத்துக்கு உட்காருவோம். மெதுவாக நம்முடைய கண்கள் மூடி ரிலாக்ஸ்டா அமைதியாக ஒரு நிமிடம் நம்மளுக்குள் கவனத்தை வைத்து மாற்றத்தை கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான சிந்தனைகள், கவலைகள், பிரச்சனைகள், விருப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரம். நுண்ணர்கள் உணர்வோமான் கவனிப்போம். அமைதியாக இருக்கிறோமான் கவனிப்போம். சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி ஸ்ரீ மாதாஜி இன்றைய தியான அமர்வுல நம்ம கூட இருக்காங்க. அந்த உணர்வோடு மிகவும் பணிவோடு இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதி கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் எங்களுக்கு சிந்தனையற்ற நிலையை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூளைக்குள் வாருங்கள்.
எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள், எங்களுடைய கவனத்துக்குள் வாருங்கள். மூன்றையும் தூய்மைப்படுத்தி ஒருங்கிணைப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. தூய்மையான விஷயம் கேட்கும்போது நம்மளோட சைத்தன்ய நிலை கூடும். கவனம் சகசிராரத்திலிருந்து வர சைத்தன்யத்தின் மீது வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मन्त्रम्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீதே இருக்கட்டும், வலது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். கவனம் இடநாடி. 2 உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் வைத்து மனதார கூறுவோம். श्री माता जी तांगले साक्षात श्री इडानाडी स्वामिनी श्री महाकाली श्री भैरवा தயவு செய்து எங்களுடைய இடாநாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து தூய்மையடைய செய்யுங்கள் தாயே. அமைதியாக தூய்மையடைய காத்திருப்போம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனம் பிங்களா நாடி. 2 உள்ளங்கையும் சகசிராரம் மனதார கூறுவோம். श्री माता जी तांगले साक्षात श्री पिंगला नाडी स्वामिनी
ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ ஹனுமானா, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து தூய்மையடைய செய்யுங்கள் தாயே. அமைதியாக தூய்மையடைய காத்திருப்போம். மெதுவாக இடது கை மடிக்கி கொண்டு வரலாம். கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுஷும்னா நாடி சுவாமினி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து தூய்மையடைய செய்யுங்கள் தாயே. எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய கவனம் கடந்த காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ இல்லாமல் நிகழ்காலத்தில் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மூலாதார சக்கர சுவாமினி, ஸ்ரீ கணேசா, ஸ்ரீ கார்த்திகேயா, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசா, ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச சக்கரசீஷை கூறுவோம். ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात्
अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोद्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयार्थौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாவை மனமாற வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம்
இடது ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி. எங்களுடைய ஹிருதயத்தை முழுமையாக சுத்திகரிங்கள் தாயே. தங்களுடைய தூய அன்பால் நிரப்பிவிடுங்கள். வலது கை ஹிருதயத்தில் வைத்து சிவ பஞ்சாட்சரியை கூறுவோம். नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जबाल सूर्याय दक्षद्वारनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय ऋषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வந்து கவனம் ஹிருதயத்தில் வைத்து அமைதியாக தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் வலது ஹிருதய சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சீதாராமா. தயவு செய்து ஸ்ரீ சீதாராமாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஏக ஸ்லோகி ராமாயணத்தை கூறுவோம். आदौ रामतपोवनाभिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिघ्नहरं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतातिरामायणम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
கவனம் வலது ஹிருதயத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நடு ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ துர்கா மாதா, ஸ்ரீ ஜெகதம்பா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அன்பு பாதுகாப்பில் நாங்கள் இருக்கிறோம் தாயே. பயமின்றி இருக்கிறோம். எப்பொழுதும் எங்களை காத்தருளுங்கள் தாயே. சப்தஸ்லோகி துர்காவை கூறுவோம். शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यां वास्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृतां हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृतां मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि काद्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीर्नाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भये भ्रस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरीविनाशनम् इति श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्णा। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். श्री माताजी, श्री सहस्रार स्वामिनी, आदिशक्ति, परमेश्वरी, जगत जननी, सकल सौभाग्य प्रदायिनी எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்குள் வாருங்கள். தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தை என்னுடைய சஹஸ்ராரத்தில் பதித்து வையுங்கள் தாயே. அன்பு அமைதியும் ஆனந்தத்தை உணர அருள் புரியுங்கள்.
நம்முடைய முழு கவனம் சஹஸ்ராரம். சஹஸ்ராரத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமலபாதம். அமைதியாக தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அன்னையின் சிவராத்திரி பூஜையின் சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சியை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். I mean, I don't know how many things I can tell you today, but also I've seen in marriages, this is very common. They'll say that, Mother, I married this girl at that time, but now I don't think I should have been married. Baba, what that time, what had happened to you? Why didn't you marry at that time? I have to tell you these things because I've been facing all kinds of problems of this stupid, idiotic ego. One has to see it clearly, how this ego is working in me and how it is keeping me down. So when we talk of ascent, we talk of a higher life, we have to become sannyasi, like the lotus that comes out of the pond and no water can stay on them. Even the leaves of lotus, no water can stay on them. Just like that we have to become. We don't have to wear sannyasi's dresses, nothing of that. But from inside, a kind of a detached attention is there, which immediately locates the problem within you and without. And also in Sahaja Yoga, you know how to overcome that. It's a very
effective, efficient system. But for that, again, to achieve that, you have to become Shiva within, means detached. As Shiva is completely detached, you have to be detached. And that detachment will give you the same wisdom as Shiva has. Shiva sees, we should say Sadashiva sees the work of Adishakti silently. He doesn't get proud, he doesn't develop a kind of a ego that see now what my Ichha Shakti is doing. Nothing. He's just watching. But when it comes to destruction, he sees that this part is going to destroy the work. Immediately he destroys, removes that. In the same way, we have to be. We have to see our life itself is a big field. How do we consider ourselves to be? I've seen people talk, oh, so what, I'm Sajogi. You can't talk like that if you're a Sajogi. With folded hands, you have to say, I am a Sajogi. In your behavior, in your talk, in everything, you have to be a person who is extremely humble. If that is not so, that means Sahaja Yoga has given you double ego. As it is, you know that Shiva is known for his innocence, for his simplicity, his forgiveness. He forgives. He forgives Rakshasas, he'll forgive everyone. That is his quality. But anybody who goes against the primordial mother, she doesn't spare. So this is the quality one has to understand. Surrendering doesn't mean outside things to be surrendered. What is there? These are all stones. What are you surrendering? Surrendering means cleansing yourself completely, getting completely detached. Detachment is the only way you can rise. Some people get sick. They make such an ado out of it. I'm sick, the whole world should know I'm sick, 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 sick. But if you are a Sahaja, you should just watch. Oh, so I am sick. All right, let's see. Just like a sport. Just watch. I'm sick. So what's happening now? The temperature is coming nicely. It's going down. It's just sort of a playful, mirthful attention. When I came, I had temperature, but nobody believes I had temperature. I was so tired in the marriage, they said, you don't look tired. I said, all right, I'm not tired. In the same way, life also is to be played. It's just a play. And that play has to be seen through the light of wisdom. Nothing is so serious. For Sahajogis, nothing is so serious. But he becomes very serious and he makes too much ado about himself. There are lots of things which we have to learn. When we worship Shiva, we praise him. You are this, you are that, you are that. When you worship me also, you praise me. You are this. I am not aware of all that you say. But you say, all right. If you say so, it's all right. You are this, you are that. There are 1,000 names of Shiva, 1,000 name of the goddess, 1,000 name of Vishnu. These are their names you are worshipping. What about you people?
How many names you can have? Actually, in the puja, when you take the names of these Shaktis, they also get awakened with it, no doubt. After puja, you do feel that way, but you don't utilize them. So many people I've seen have come in the puja and they have got that power within themselves. Same powers. But by the time they are out, it's finished. It's gone. So, surrendering has another side. Assumption. Assumption that I am a Sahaja and I can absorb all these powers within myself. So one side is surrendering. Why to surrender? To absorb. Automatically, when you are surrendered, you absorb. But once you have absorbed, then you should retain and assume within yourself, know that you have these powers. There where Sahajogis fail more. First time it happened, no Sahajogi would touch anybody, raise anybody's Kundalini, this thing, that thing. We had at least 50 Sahajogis by then. I said, now what to do? I have prepared these channels and nobody is even raising their fingers. How am I going to work it out? Very difficult. But once it happened, we had a program in Nasik Road and I was staying in Nasik. It's about, I think, 30 miles from there. So we reached halfway and our car failed. And nobody, no other car was coming, nothing, no support, nothing. I didn't know what to do. But all the Sahajogis had arrived there. And such a big crowd. They started saying, when is Mataji coming? When is Mataji coming? Such a pressure. So they said, all right, we'll give you realization. Sit down. And they gave realization. That's the first time the Sahajogis started knowing that they can give realization, they can do this, they can do that. They all started after that. So assumption should be there, that I have these powers. I'm not going to waste them. I'm going to use them. I'm going to look after others. I'm not going to just keep to myself. This assumption has to come. Once I was traveling by ship and one fellow got caught up in the freeze room and he got pneumonia. So the captain came to me that, see, this boy has got pneumonia. We have to get some doctor by helicopter. I said, Captain, I've given you realization. You are a doctor. He said, I see. If you want, I can go down. No. But tell me what to be done. I said, just go and put your hand on his heart. Finished. He said, yes, you. Went down and put his hand. And the fellow got all right. He was amazed. He met me now in the wedding. And he was amazed at himself. This I can do to anyone? Yes, you can. But if you do not assume and just sit down meditating, surrendering, what's the use? So, you have to do now, after achieving Shiva state, you have to start doing the work of Adishakti. You should get this desire that we should spread Sahaja. We have to work it out. But be careful. Sometimes you might be conditioned, you might be egoistical. Watch yourself. With watching, you can, I'm sure, you can achieve a lot. We have done. Some people who have taken it upon themselves have done it everywhere in every country. So the first thing of surrendering is important to reach the state of your spirit
of Shiva and Sadashiva. But the second state is that you have to now think of others. First, it is, as they say in Sanskrit, is vyashti, means individual gain. You get the individual gain. And then it becomes samashti, means the collective. You have to work it out on collective. People who never even got realization, nothing of the kind, have been doing so much organization and this and that, while you have got everything. So now it is important that you should now extend this light to others. माफ करिए, मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ी। यहाँ बाहर से काफी लोग आए शिव जी की पूजा में, आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं था। और शिव जी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं और उनकी सारी कहानियां भी आपको सबको मालूम, लेकिन उसका सार क्या है, उसका तत्व क्या है, शिव जी का तत्व क्या है, वो जानना चाहिए। सो शिव जी जो है, उनको कोई चीज छूती नहीं। कोई उनको कुछ भी कहे और जाके माफी मांग ले, कहते हाँ भाई जा माफ। उनको कोई चीज, मान अपमान, सुख दुख, कोई चीज उनको छूती नहीं। वो शिव जी बिल्कुल सब चीज से अलग, मुक्त, जिसे कि आदि शंकराचार्य ने शिवोहम कहा। तो पहले आदि शंकराचार्य के समय में शिवोहम की बात हो रही थी। यही बात हो रही थी कि मैं शिव हूं, ठीक। और ये गति प्राप्त करना, ये व्यक्तिगत प्रयत्न से होता है। और उसके बाद जो दूसरी स्थिति है, उसमें जिस तरह आदिशक्ति कार्यान्वित है, उस तरह आपको कार्य करना चाहिए। नहीं तो ये दोनों कार्य अगर इकट्ठे नहीं हो तो शिव का पद मिलने से फायदा क्या? बैठे हुए हैं। अगर शिव ही सब कार्य कर सकते थे तो उन्होंने आदिशक्ति को क्यों बनाया और आदिशक्ति से क्यों कहा कि आप सब क्रिएट करिए, ये करिए, वो करिए? वो सब करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एक पद है शिव पद। उस शिव की पद पे पहुंच करके जहां पूरी तरह से निरीक्ष हो जाए, तब फिर आप किसी भी चीज में उतरे। अब हम देखते हैं कई कई लोग कहते हैं कि वहां सहयोग में एक साहब है, वो पैसा खा रहे हैं। भाई कुछ समझ, सहयोग में आने के बाद पैसा कैसे खा रहे? तो पैसा खा रहे। कोई है वो अपना ईगो दिखा रहे हैं, अपनी सत्ता दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी पागलपन की बातें सहयोग में आने के बाद भी कर रहे हैं। तो कुछ चिपक गई होंगी चीजें उनको, ऐसा हो सकता है, पर वो छुड़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सहयोग में आए तो पहले आप शिव पद पे आए, माने जिसमें आप पूरी तरह से निरीक्ष। उसके लिए समर्पण, पूरा समर्पण होने पर आप शिव शक्ति में आ सकते हैं। शिव की जो शक्ति है वो यही है कि वो बिल्कुल निरुच्छ, उनके ऊपर कोई चीज का असर ही नहीं आता। ना उनमें अहंकार है और नहीं उनमें कोई किसी तरह के भी संस्कार। अब चले आए अपने शादी में बैल पे बैठ के, और बैल दोनों पैर यूं करके बैठे, बैल अपना दौड़ा जा रहा है, ये बस उसको पकड़े हुए किस तरह चले आ रहे। अब वहां पहुंचे तो पार्वती जी को भी शर्म आ रही थी कि ये क्या मेरा दूल्हा ऐसा चला, क्योंकि मस्त है वो, उनको क्या। अबे ये नहीं कि घोड़े पे बैठ के और उनके आगे बारात चले। अब बारात में सारे, किसी का एक आंख तो किसी के दांत गिरे हुए, तो किसी का कुछ, तो इस तरह लोग लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब चीजों की कोई एहसास ही नहीं इस चीज का कि कौन क्या है, क्या कपड़े पहने हैं,
किसकी आंख कहाँ है, कौन किस तरह से बावला सा चला रहा है, कोई बुद्धू जैसे चला रहा है, कोई अर्धनग्न स्थिति में चला रहा है, उनको ये चीज सूझती नहीं। वो तो बिल्कुल निरीक्ष में बैठे। अरे भाई जैसे भी है चलो, जो भी साथ मिल गए चलो। अब वो अपने यहाँ नहीं तो बारात में जाएंगे, भाई ये कपड़े पहन के जाना है, ऐसे जाना है, घोड़े पे बैठना है, फलाना है, ढिकाना है, और इतना सा कम रह गया तो बहुत आफत आ गई। ऐसे तो नहीं, चले वो अपने ऐसे बारात में जैसे हैं वैसे चल दी, क्योंकि ये निरीक्षता का लक्षण। और भोले हैं, भोले इसलिए कि फालतू की चीज उनका खोपड़ी में आती। भोला जो आदमी होता है ना, उसको ये चीज नहीं आती। अब मैंने देखा ये कि बहुत से लोग हैं, किसी घर जाए, क्या उन्होंने कारपेट बिछाया हुआ था। अरे भाई तुम कारपेट से मिलने आए हो कि किसी इंसान से मिलने आए? कोई लेडी आई, अरे क्या वो साड़ी पहने थी। आपको इंसान से मिलना है, उसके सार पे उतरो, उसके तत्व पे जाओ और उसको जानो कि इंसान क्या है। वो छूट गया एक तरफ, और बस वो क्या पहने थे और उनके घर में क्या था और फलाना क्या था और ऐसा था वैसा था। इतनी नजर जो है, ऊपरी नजर से देखने का जो तरीका है, ये शिव का तरीका है। अब उन्हीं को देखिए, उनके जीवन में वो कैसे जाके बैठ गए हिमालय। किसी चीज को उनको परवाह नहीं कि कौन मुझे क्या कहेगा या मुझे कैसे रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ। अब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु जब हो गई तो उसके शव को अपनी पीठ पे लाद के चल दी। अब कौन करेगा ऐसे? कोई नहीं करेगा। उनके सारे तरीके अनोखे हैं, क्योंकि वो अनोखे हैं। किसी चीज के बारे में उनको ये नहीं है कि ऐसी तरह से होना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए, कुछ। लेकिन तत्व में देखा जाए तो वो जिस चीज को ठीक समझते हैं उसी को ठीक समझते, और जिस चीज को गलत समझते हैं उसको गलत समझते हैं। ये धारणाएं उनकी बदलती थी। यानी उन्होंने अपने पत्नी तक को दे दिया रावण। अब लोग कहेंगे कि तमाशा है, पत्नी को उठा के रावण को दे दिया। अब उनको मालूम है कि उनकी पत्नी देवी है, उसको रावण क्या करे। वो किसी को भी दे दे, वो तो साक्षात देवी है, उसको ठीक करके रख देगी रावण। तो ऐसी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं कि बाह्यता सब चीजें देखना, ये बाह्य की आंख जैसे जैसे कम होने लग जाएगी, अंदर की आंख खुलने लग जाएगी। कैसा भी इंसान अपने लिए ठीक है कि आप अपने लिए ठीक से रहे, ठीक से बातचीत, पर कोई किसी तरह का भी इंसान हो, उसके तत्व को समझिए कि उनसे इनका अंदरूनी कैसा है। अब कोई देहाती लोग होते हैं, वो बोलते वक्त में जरा अखड़पना से बोलते हैं, किसी की जबान ऐसी होती है, किसी की वैसी होती है। अब उसी पर से नाराज होकर बैठ गए। उस पर यह सोचना चाहिए कि ये इनका तरीका है, चलो ये भी अच्छी बात, इसमें कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं। अब कोई बड़े तहजीब वाले लोग चले आए तो वो तहजीब में आप बह जाइएगा, पता चला कि आपके सब चीज खो गई उनके साथ। तो जो कुछ भी चीज बहुत बाहर से सुंदर बनाई जाती है, अधिकतर धोखा देने के लिए। इसलिए किसी भी बाह्य की चीजों की तरफ इतना लगाव रखना, देखना, ये गलत बात है। अब आजकल के जो तरीके चल पड़े हैं, आप देख रहे हैं इस संसार में, खासकर अपने देश में, जो बाहर की संस्कृति यहाँ आ रही है, कितनी उसमें बाह्य दृष्टि है लोगों की, कितनी है। नहीं तो अगर नहीं होती तो ऐसे सब नहीं रहते। गांधी जी थे बेचारे, वो अपनी धोती पहन करके पहुंच गए लंदन। अब उनको कोई कहेगा कि लंदन में वहां तो 3 पीस सूट पहन के जाना चाहिए, ये कैसे पहुंच गए? और जिसको जो कहना कहते। उसमें सिर्फ ये बात दिखनी है कि कुछ लोग तमाशे के लिए ऐसे पहने तो दूसरी बात, पर अंदरूनी जब मनुष्य विमुक्त हो जाता है तो उसको कोई सी भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है सिवाय असलियत के। असलियत को मानता है
और ये शिव जी का तत्व पहले प्राप्त होना चाहिए। जब शिव जी का तत्व प्राप्त होगा तभी आप आदिशक्ति का कार्य कर सकते हैं। अब कार्य तो करने लगे और शिव जी का तत्व प्राप्त नहीं हो तो किस पे इसका असर होने वाला? आप स्वयं शिव हैं और फिर जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो कितना सुंदर हो सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गालियां भी दे दी, कुछ भी कर दिया तो क्या? इसकी व्याख्या श्री कृष्ण की है सिद्ध प्रज्ञ शिव की स्थिति की कि जहां कुछ भी हो रहा है होने, किसी के कहने से क्या मतलब, लेकिन अंदर का जो तत्व है वो साफ होना चाहिए। अंदर का तत्व बिगड़ना नहीं चाहिए। और दूसरों में अगर बिगड़ा भी है तो भी कोई अर्ज नहीं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरों को आप बुरा कहेंगे लेकिन अपने को नहीं कहेंगे तो आप कभी नहीं ठीक हो सकते। ये शरणागत होने का मतलब ये है कि जो कुछ भी अपने अंदर इस तरह की चीजें हैं उसका त्याग करते जाना, त्याग करते जाना, त्याग करते जाना। अंत में जो एक स्वच्छ शुद्ध स्वरूप आपका आत्मा है उसके दर्शन से ही आप आनंदित हो जाए और वो आपको पूरी तरह से इतना समर्थ बनाएगा, इतना समर्थ कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी समर्थता हमारे अंदर कहां से है। आज शिव जी की पूजा होनी चाहिए और हो रही है और आप लोग भी इस वक्त वही समर्पण के भाव से बैठे। और जो समर्पण का दूसरा हिस्सा है जिसमें कि हमने ये पाया है, हम आत्म साक्षात्कारी हैं, हम लाखों में एक, ये हमें प्रदान हुआ है, आशीर्वाद मिला है और हम इसमें कितना योगदान देते हैं, कितना कर पाते हैं, इसका भी अंदाजा लगाना चाहिए। ऐसे तो आप लोग वाकई मेरी तो कल्पना से बाहर है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना परिवर्तन मनुष्य में आ सकता है, कभी नहीं समझा था। उस हिसाब से तो इतना कार्य हो गया है सारे विश्व में कि बहुत आश्चर्य होता है और बहुत समझ की बात है कि लोग जो कि बहुत गलत रास्ते पर खड़े थे, जो बिल्कुल विनाश की ओर जा रहे थे, वो उठकर खड़े हो गए और वो आज हमारे साथ है। कितनी बड़ी चीज है जो शिव का प्रदान, हमारे हृदय में उनका जो प्रतिबिंब आत्मा स्वरूप है, उसका ये महान आशीर्वाद। और इस आशीर्वाद से आप सब प्लावित हैं। बस अब इसको बढ़ाना है, समर्पण से बढ़ाना है और फिर सामूहिकता में इसे बांटना है। ये एक इंसान के लिए नहीं, ये एक उत्थान के लिए नहीं, ये सबके उत्थान के लिए है। आज जिस कगार पे हमारा विश्व खड़ा हुआ है उससे हमें बचाना है, पूरी तरह से बचाना है। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जो सहयोगी, जिन्हें अपने जीवन में, अपने अंतर में, व्यवहार में, हर चीज में सहज को देखना आना चाहिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
श्री माता जी. ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு மனப்பூர்வமா நன்றியை கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி வருத்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.